always, manager, Talasa Convent Girls Inter College.
कोशिश हम जब देश की पतवार हमारे हाथ है। तो क्यों ना करें निर्माण हम एक ऐसे भारतवर्ष का जो एक अदम्य चेतना की मिसाल हो, धन्यवाद। We stand here on this historic day not just to mark the birth of our Constitution, but also to mark our identity as a sovereign republic. This day teaches us about unity, integrity, and liberty. It also reminds us that each and every individual, despite of their caste, creed, and gender, has right to work, right to succeed, and right to dream. And always remember that democracy is not just a government, it's a collective power of the people, it's you and me. घर सजाने की इच्छा रखते हो, आओ पहले इस घर की मजबूत नींव खींची जाए। We have come a long way as a civilization, from Rigved and Samved to the longest written constitution in the world. From building Pushpak Viman 4,000 years ago to now building Tejas and Miraj. And from worshipping Moon and Mars to now going to Moon and Mars. We have come a long way as a civilization. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to the management and the principal of Kanasa Convent Girls Central College for providing me this opportunity to unfurl our lovely national flag on this auspicious day. Dear friends, our national festivals are always very special to us. And 26th January is the day of pride, integrity and unity for all Indians. It is the day not only to remember our martyrs and soldiers, but to remember the contribution of Dr. Bhim Rao Ambedkar also, the main architect of our constitution as the chairman of draft committee. Dear students, the significance of Republic Day goes beyond the tricolor and patriotic fervor, as it encapsulates our collective commitment to justice, liberty, and fraternity. So, in the spirit of Constitution, let us pledge to uphold the ideals that form the bedrock of our democracy. Let us love our motherland and mother tongue too. It is our responsibility to embrace the diversity of India with open heart. And let us remember that the progress and strength of our democracy lies in the hands of well-informed and active good citizens. So on this day, let's renew our dedication in building a nation where every individual's rights are protected and every voice is heard. May we carry this torch of democracy forward, guided by the principles laid by our visionary leaders. इसी के साथ आज का जो ये आनंद है, जो ये 26 जनवरी है, उसके विषय में एक पोएम भी प्रस्तुत कर रही हूँ। 26 जनवरी धरती पर उतरा प्रकाश है, किरणें उतरी नई प्रभा है, मिला उजाला है, नव प्रभात है, मिटा रात का वो अंधियारा है। फूल खिले हैं, कलियां मुस्काई, कलरव उजागा है, अनसाए नैनों से सारा आलस भागा है। नर नारी सब लगे काम पर, नियम वंदन है, कर्म देवता का घर घर होता अभिनंदन है। निज कर्मों से बने यशस्वी, निज कर्मों से बने यशस्वी है जागा विश्वास, लहर ले रही नई चेतना होगी पूरी आस।
भारत माँ की सजी आरती वेश निराला है। भारत माँ की सजी आरती वेश निराला है। धरती पर उतरा प्रकाश है, मिला उजाला है। इसी के साथ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। मदर सुपीरियर कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या। आज का दिन पावन गणतंत्र 26 जनवरी का पर्व। इस 76वें तिरंगे के सम्मान में बैठे हैं हमारे ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। बच्चों, गणतंत्र का जो ये अर्थ है, ये क्या आप सभी लोग जानते हैं? ये वंशानुगत नहीं है, ये परिपाटी पे चलने वाला शब्द नहीं है। ये हमारे और आपके द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये तैयार कब हुआ? स्वतंत्रता का, गणतंत्र का जो पूर्ण हुआ, ये किस दिन हुआ? क्या आप बता सकते हैं? 50 को तो लागू हुआ। हाँ, 26 नवंबर 1949 1949 को ये तैयार हो गया था और एप्लीकेबल इस दिन हुआ। समझ रहे? तो बच्चों, ये चीज आप जान लीजिए कि जितने महापुरुषों ने, मैं इस बात को दोहराऊंगी नहीं कि किस दिन आजाद हुआ और किन किन ने किया, हम उनसे क्या प्रेरणा अपने जीवन में उतार सकते हैं। चाहे वो बापू हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो बेटा, हमें उनसे क्या प्रेरणा लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अब हम लोग कहते हैं जय हिंद, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। समझ गए? आइए, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने सिर्फ नारा ही नहीं दिया, एक भारत के नवयुवकों को नई चेतना भी प्रदान की। आइए, सुभाष के थोड़े से गुण को हम सभी विद्यार्थी लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो सुभाष का व्यक्तित्व था वो कैसे था? सहयोग का था। जब वो छोटे थे तो ये क्या करते थे, इनके घर के सामने एक महिला रहती थी। वो कैसी थी? बहुत गरीब थी। धूप में, बारिश में, है ना, सर्दी में बेचारी परेशान होती रहती थी। सुभाष देखते थे कि मैं तो बहुत अच्छे घर का हूँ, मैं तो अच्छे से खा पी रहा हूँ, मैं अच्छे से बस में बैठ के स्कूल जा रहा हूँ और ये महिला संघर्षों से जूझ रही है। तो उन्होंने कहा, उस बच्चे के मन में भाव आया कि कैसे मैं इसकी सहायता करूँ उस बूढ़ी माँ की। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान देना, वो आप भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो पैसा उनको बस में जाने का मिलता था, वो उस पैसे को रख लेते थे और पैदल चले जाते थे और चले आते थे। तो पहले जो पैसा मिलता था वो लाके उस बूढ़ी माँ को दे देते थे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनका क्या किया, सहयोग किया। तो बच्चों, आप अपने जीवन में उतारिए कि मेरे लेवल से, मेरे स्तर से जो भी सहयोग हो सकता है, मैं बढ़ चढ़कर सहयोग करूं। ये नहीं कि बड़ा बड़ा सहयोग, छोटे छोटे सहयोग, उसके लिए हाजिर रहिए। कुछ मांगे, हाँ मेरे पास है, नहीं हम दे देंगे, ये नहीं होना चाहिए। कोई सड़क पर जा रहा है, बूढ़ा है, अंधा है, परेशान है, सड़क पार करवा दीजिए पकड़ के हाथ, उसका क्रॉस करा दीजिए। ये आप कर सकते हैं, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपका उदारवादी हृदय होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया सुभाष से? सहयोग की भावना, सहयोगी बनना है, सहयोगी आत्मा होना है और सहयोगी, किसी के साथ सहयोगी बनना, अपने लिए सहयोग का आमंत्रण देना है। अगर आपने किसी का सहयोग किया, एक प्लस पॉइंट, और ऊपर परमात्मा का, परमेश्वर का भी आपकी हाजिरी लग जाएगी।
कैसी सहयोग की, समझ गए कि नहीं? तो आप दोहरा लाभ आपको बच्चों में मिलेगा। इसलिए सहयोग एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर करिए। समझ में बात आई? हाँ, अच्छा। अब ऐसी बहुत सी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया है। शायद लक्ष्मीबाई भी वो नहीं कर पाई जो सावित्रीबाई फुले ने कर दिखाया। नाम सुना है सबने? अब देखिए, जिस समय की सावित्रीबाई फुले थी उस समय शिक्षा की हालत क्या थी, लेकिन वो एक ऐसी महिला जो घर घर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, और जब वो जाती थी तो लोग कहते थे नहीं, महिलाओं की शिक्षा जरूरी नहीं। और वो बेचारी जब जाती थी तो एक कंधे पर बस्ता डाल के जाती थी, झोला लटका के जाती थी, उसमें एक साड़ी ब्लाउज रख के ले जाती थी और पेटीकोट भी, पूरा सब कुछ सेट। रास्ते में सब लोग उसके ऊपर गंदी वस्तुएं, कीचड़, ऐसी ऐसी चीजें फेंकते थे कि ये जा ना पाए, पढ़ा ना पाए, परेशान हो जाए, घर वापस चली जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जाती थी सब कुछ सहती हुई, जहां पहुंचती थी वहां वो हाथ में धोती थी, हाथ में धोने के बाद ये कपड़े बदलती थी जो लेके आती थी, और कपड़ा दूसरा जो गंदा कपड़ा था उसको झोले में रखती थी, और इसके बाद बच्चों पढ़ाती थी। अब ये क्या है? ये है समस्याओं से कैसे निपटा जाए। आपको जिंदगी में बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? उसे घबराना नहीं। अगर वो घबरा जाती बेटा तो कैसे पढ़ाने जाती बताओ? शिक्षा का प्रसार और प्रचार कैसे होगा? तो हमने इनसे क्या सीखा? सावित्रीबाई फुले से संघर्षों से जूझना, हिम्मत को ना हारना। अब आज रिक्शा वाले हम स्कूल ले जाएंगे, कपड़ा उतारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं आया तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ, चौराहे से रिक्शा ले लूंगी, टेम्पो ले लूंगी, ऑटो ले लूंगी और मैं विद्यालय आऊंगी। हल्का सा पानी बरसा आज ले जाएंगे। क्या है ये सब बेटा? ये सब से काम नहीं चलेगा। अगर आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी चीजों को जिंदगी से आपको निकालना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है? बताओ मुझे। हाँ, जिंदगी को सफल और अच्छा बनाने के लिए आपको परिश्रम की श्रेणी में आना आवश्यक है। आइए सुभाष का एक कविता मैं आपको सुनाऊंगी जो मैं शायद एक आध बार शेयर भी कर चुकी हूं। धोती पर बंगाली कुर्ता, बढ़िया खादी वाला, और बड़े बड़े नेताओं जैसे ओढ़े हुए दुशाला। मैंने इनके और चित्र भी देखे हैं अखबारों में, और सेनापति की तरह खड़े हैं बड़े बड़े सरदारों में। अब साथियों की टोली आगे बढ़ने को चलती है, और माइन का पता बता दो मुझे बहुत ही जल्दी। मातृभूमि राष्ट्रमित्र की गोदी त्याग गए हैं, माया और साम्राज्य मित्र के बंधन तोड़ गए हैं। इनका विश्व पताका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और समर घोष जय हिंद चलो है दिल्ली इनका नारा। ये सबके मन को बरबस कर लेते काबू हैं, और स्वतंत्र भारत के नेता ये सुभाष बाबू। वंदे वंदे वंदे। A very good morning to all of you. Respected Chief Guest of the Day, Rita Badwal ma'am, Guest of Honor, Rekha ma'am, and our loving manager, Sister Lucy Gonsalves, Shadia ma'am, all my dear teachers and loving students. First of all, I wish you a very happy Republic Day. I take this opportunity to thank our distinguished guest. First of all, I thank Rita Badwa ma'am for unfurling the national flag and for the beautiful message which you have shared with us. Dear students, let us give a big round of applause to our loving Rita Badwa ma'am.
I also express my gratitude to our guest of honor, Rega ma'am, for her valuable presence, loving message. Really, I am sure the Canossa campus is shaken by her message which she has shared with us. Thank you, ma'am. I also express my gratitude to my Mother Superior, to our Mother Superior, Sister Leslie Gonsalves, for always being with us, supporting us, guiding us, and sharing her valuable time with us. Also, express my gratitude to Shavia ma'am. She is always here with us, especially on 15th of August and 26th of January. Ma'am, we really appreciate your presence in our campus. Yes, dear teachers and students, I'm so grateful to all of you, especially the students those who came on the stage with the less preparations, and also the students those who have marched, participated in the march past, leaders, and in the band group, and the guiding students, guide students, and the choir group. Really students, without a practice we could make this a wonderful one. I really appreciate your cooperation, and I take this opportunity also to thank our program coordinators, teachers especially, those who are involved in this to prepare the students. So really, let us give a big round of applause to our teachers for being with us, a strength of pillar to guide you and lead you always. And I also thank our non-teaching staff, bias and BBs. They are there always to keep the things clean and to keep everything ready. So dear students, let us also encourage them with a big round of applause for all our bias and BBs today. Thank you.